میرے دشمن میں بےتاب ہوں. کافی بہت اچھی تھی. لولی. تھینک یو. آفس چل رہی ہے پھر؟ سر وہ خاتون آئی ہے جو کون؟ وہ خاتون آئی ہے کوٹ میں دیکھا تھا سائم کی والدہ. السلام علیکم. جی کہیے. وعلیکم السلام. بیٹا میرا نام فرحین ہے. فرحین حسین. میں فراز کی ماں. فراز کو نہیں مارا. میں نے فراز کو نہیں مارا. میں نے فراز کو نہیں مارا. میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں مارا. کچھ تمہارے ساتھ ہوا. اس کو بہت دکھ. ہوگا. اپنے بیٹے کے زخم جو دیکھ لیا آپ نے ہوگا. مجھے میرے بیٹے کے زخموں نے احساس نہیں دلایا تمہارے دکھ کا. منع کیوں نہیں کیا اس کو؟ میرے علم میں نہیں تھا. میرے علم میں ہوتا تو میں کبھی اس کو ایسا نہ کرتی تھی. وہ بہت شرمندہ ہے. مجھے یقین کرو بیٹا. اس نے یقین کیا تھا میرا. کیا تھا. سارا یہ میرے فراز کا یتیم بچہ ہے. تمہارے پاس لے کر آئی ہوں. ایک دکھی ماں کی لاج رکھ لو. تم نے اپنی اولاد کھوئی ہے نا. تم ماں کا درد سمجھ سکتی ہو. السلام علیکم دوستوں. میں امید کرتا ہوں کہ ہمراہ ڈرامہ دیکھنے اور ہمراہ ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ہمراہ ڈرامے کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید. اس ریویو کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے سائم کے گھر کو، جہاں پر سائم جو ہے صبح صبح اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد اپنے کمرے سے نیچے اترتا ہے اور آ کر وہ اپنی والدہ کو آواز لگاتا ہے، لیکن گھر میں اس کی والدہ موجود نہیں ہوتی اور وہ کافی زیادہ آوازیں لگاتا ہے، لیکن اس کی والدہ کا کوئی جواب نہیں دیتی اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ والدہ گھر نہیں ہے. وہ ضرور کہیں کسی کام سے باہر چلی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ گھر نہیں ہے اور مجھے اس نے جواب نہیں دیا. نہیں تو وہ پہلی آواز پر ہی بول پڑتی ہیں. دوسری طرف ہمیں جو ہے سارا کے خاندان کو دکھایا جاتا ہے. سارا کے والد، سارا کی والدہ، سارا کی سسٹر کو دکھایا جاتا ہے، جو کہ تینوں جو ہے صبح صبح ہر کوئی اپنے اپنے کام پر جانے کے لیے ریڈی ہو رہا ہوتا ہے. اور یہاں پر جو سارا کا بابا ہے وہ آتا ہے اور کافی کا کپ ایک اٹھاتا ہے اور ایک کیک اٹھا لیتا ہے اور ایک سائڈ پر بیٹھ کر کھانا شروع کر دیتا ہے. دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو سائم کی والدہ ہے وہ جو ہے سارا کے گھر آ جاتی ہے اور اس سارا کے گھر میں جو نوکر خاتون ہوتی ہے وہ اسے لے کر اندر آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اسے
कमरे में बिठा कर सारा के पास आती है और कहती है, सारा बीबी आपसे कोई खातून मिलने के लिए आई है और वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही है कि उसने आपसे मिलना है। तो सारा कहती है, मुझे तो लेट हो रही है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम खुद मिलो या वालदा कहो, उससे मिल लेती है, जो काम है उसे बता दे। तो यहाँ पर वो औरत कहती है, नहीं बीबी, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे मिलना चाहती है, आपके अलावा किसी से नहीं। आपसे वो कह रही है कि कोई ज़रूरी काम है जिसकी वजह से वो आपसे मिलने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर जो सारा है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अल्लाह खैर करे, पता नहीं अब इस खातून को क्या है, किस वजह से मुझसे मिलना चाहती है। इधर सैम की जो वालदा है वो साथ ही अपने बेटे का जो बच्चा है वो भी साथ लेकर आ जाती है और आकर वो कमरे के अंदर बैठ जाती है और इसके बाद वो जो है सारा का इंतज़ार करना शुरू कर देती है। तो कुछ ही देर बाद उसी तरफ हमें सारा की वालदा, वालिद और उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है। उसका वालिद चाय पीने के बाद कहता है, आज चाय बहुत ही मज़ेदार थी, कॉफ़ी बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। तो यहाँ पर उसकी बेगम कहती है, थैंक यू। इसके बाद वो कहता है, तो आज आखिरकार सारा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई। तो उसकी वालदा कहती, हाँ बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसी दौरान वहाँ पर एक शख्स आ जाता है, उनका नौकर आ जाता है और आकर कहता है, सर जी घर में एक खातून आई है। तो यहाँ पर जमाल जो है सारा का वालिद वो कहता है, कौन खातून आई है? तो यहाँ पर वो शख्स कहता है कि वो खातून, जब सारा बेबी का केस चल रहा था तो अदालत के अंदर मैंने सैम की वालदा को देखा था, यानी कि सैम की वालदा आई है। तो ये सुनकर वो सब लोग एकदम से चौंक जाते हैं और वो हक्के बक्के रह जाते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आई है, खैरियत से तो आई है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एकदम से परेशान हो जाते हैं कि शायद अब कोई नया ही मसला ना पैदा हो जाए या कोई और मुसीबत ही ना आ जाए। इसी वजह से वो थोड़े से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सारा की बहन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों पहले जो है सैम के घर गई थी और वहाँ पर ये काम करती रही थी। तो दूसरी तरफ हमें सैम को दिखाया जाता है जो वालदा की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और एक तरफ आकर चेयर के ऊपर बैठ जाता है। इधर सारा की वालदा जो है, सैम की वालदा, वो बैठी भी होती है और साथ ही अपने पोते को वो चुप करवा रही होती है। और यहाँ पर सारा भी आ जाती है और सारा आती है और आकर देखती है कि खातून बैठी हुई है और उसकी गोद में एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा भी है। तो यहाँ पर सारा आकर सलाम बुलाती है और सारा को देखकर सैम की अम्मी जो है खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर सारा के पास आ जाती है और सारा के सलाम का जवाब देती है और जो है सारा कहती है, जी फरमाइए क्या काम है। तो यहाँ पर जो है सैम की वालदा कहती है कि मैं आपसे कोई ज़रूरी बात करने आई हूँ। मैं असल तो सैम की वालदा हूँ और मुझे तुमसे यहाँ पर काम है। तो यहाँ पर जब सैम की वालदा का नाम लेती है तो यहाँ पर सारा का रिएक्शन देखने वाला होता है। वो एकदम से चौंक जाती है और वो घबरा सी जाती है कि अब ये यहाँ पर क्या करने आ गई है। तो यहाँ पर जो सैम की वालदा है वो कहती है, बेटा मैं यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी काम आई हूँ, मैं आपसे गुजारिश करने आई हूँ कि सैम आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। वो आप के साथ इस रवैये की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और बहुत ही शर्मिंदा भी है। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस रिव्यू का, इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमें दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।